goes to lotus feet of Guru Gauranga ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, Gantra Srimad Bhagavatam ki jai. So we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 10, verse number 17. It's continuation from yesterday, and we thank His Grace, His Divine Ramchandra Prabhu for being here for yesterday's class. Now we'll try to further on here what is King Raghugan is saying. He's speaking again today. Yesterday he was asking about who that person who was speaking to him, who was Jadbharat, who looked like a Brahman or a saintly person, and who looked like a very highly advanced learned scholar. So he was asking, whose disciple are you? Where do you live and where have you come to? And what is your mission? So having inquired about him, he's further on gonna explain his expression today. तो कल हमने सुना हमारे प्रिय गुरु भाई रामचंद्र प्रभु ने अच्छी तरह से समझाया कि महाराज रघुगण ने पहला प्रश्न जो पूछे थे जडभरत से कि आप वास्तव में कौन हो, आपका कौन गुरु है, कौन आप किस परिवार से आए हैं, देखने में तो आप बड़ा महान संत लग रहे हो, बोलते हैं जो बात देखने में लगते थे कि कोई जैसे पागल की तरह, परंतु उन्होंने जब मुख खोला तो बड़ा महान संत कि उन्होंने कहा महान संत की तरह है। तो पूछ रहे थे कि आपका क्या वास्तव में आने का क्या मकसद है, ये जानकारी लेना चाहते थे। तो आज सुनते हैं। नाहम विशंके सूरा राजा व्रजरन ना त्रियक्षा शूलन ना यमस्या दंडन नाग्नि अर्का समानिलीना वितापश्चात शंके भीष्म ब्रह्मा कुला अवमालत नाहं विशंके सुरा राजा व्रजरन न अहं विशंके सुर राजा व्रजरन नात्रियक्षाशूलन्नायमस्या दण्डत् नात्रियक्षाशूलन्नायमस्या दण्डत् न अग्नि अर्का सोमानीलाविता पश्चात् न अग्नि अर्का सोमानीलाविता पश्चात् शंके भीषम ब्रह्मा कुला अवमानत् शंके भीषम ब्रह्मा कुला अवमानत् न अहं विशंके सुर राजा व्रजजन
Na triyaksha shulam na yamasya dandat. Na agni arka soma nila vrita paschat. Shanke bhisham brahma kula avanamat. Na aham vishanke suraraja vajran. Na triyaksha sulam na yamasya dandat. Nagni arka soma nila vita paschat. Shanke bhisham brahma kulava manat. Na aham vishanke suraraja vajran. Na triyaksha shulam na yamasya dandat. Na agni arka soma nila vita paschat. Shanke. Shanke bhisham brahma kulavamana. Na, not. Aham, I. Vishanke, I am afraid. Suraja Vajrat, from the thunderbolt of the king of heaven Indra. Na, nor. Trayaksha Shular, from the piercing trident of Lord Shiva. Na, nor. Yamasya, of the superintendent of death Yamraj. Dandat, from the punishment. Na, nor. Agni, of fire. Arka, of the scorching heat of the sun. Soma, of the moon. Anila, of the wind. Vitapa, of the owner of riches. Kuber, the treasurer of the heavenly planets. Ashrat, from the weapons. Shanke, I am afraid. Bhisham, very much. Brahmakula, the group of the Brahmins. Avamanat, from offending. Tatparya, translation and purport by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. My dear sir, I am not at all afraid of the thunderbolt of King Indra, nor am I afraid of the serpentine piercing trident of Lord Shiva. I do not care about the punishment of Yamraj, the superintendent of death, nor am I afraid of fire, scorching sun, moon, wind, or the weapons of Kuber. Yet I am afraid of offending a Brahman. I am very much afraid of this. You may repeat, my dear sir, I am not at all afraid of the thunderbolt of King Indra, nor am I afraid of serpentine piercing trident of Lord Shiva. I do not care about the punishment of Yamraj, the superintendent of death,
nor am I afraid of fire, scorching sun, moon, wind, nor the weapons of Kuber. Yet I am afraid of offending a Brahman. I am very much afraid of this. Purport. When Sri Chaitanya Mahaprabhu was instructing Rupa Goswami at the Daswamedha Ghat in Prayag, he pointed out very clearly the seriousness of offending a Vaishnav. He compared the Vaishnav aparad to Hathi Mata, a mad elephant. When a mad elephant enters a garden, it spoils all the fruits and flowers. Similarly, if one offends a Vaishnav, he spoils all his spiritual assets. Offending a Brahman is very dangerous, and this was known to Maharaj Raghugan. He therefore frankly admitted his fault. There are many dangerous things: thunderbolt, fire, Yamraj's punishment, the punishment of Lord Shiva's trident, and so forth. But none is considered as serious as offending a Brahman like Jat Bharat. Therefore, Maharaj Raghugan immediately descended from his palanquin and fell flat before the lotus feet of the Brahman Jat Bharat just to be excused. Om Jnana Tirmandasya Jnananjana Salakaya Chakshurmitam Yena Tasme Shri Gurve Namah. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Tamal Krishna Goswami Tinamine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Desha Tarine. Narayan Namaskrityam Naram Chaiva Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudharye. Nashapraeshu abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatam Uttam Shloke Bhakti Bhati Nestute. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. This is a very nice verse which is applicable to all the devotees and everyone. No? Here King Raghugan is telling us what are some of the dangerous things normally people are afraid of. Shrap, curse. What he is mentioning here is the thunderbolts, fire, Yamraj's punishments of Shivji, and weapons of Kuber, the scorching sun, the moon, air. Air comes in the form of cyclones or disasters come along with all these elements. Everyone gets so frightened. But King Raghugan is telling boldly that he is not afraid of all those. So you can imagine how powerful he is. But what is he afraid of? Offending Brahman, offending Vaishnavas. Therefore, Prabhupada very nicely tells that same thing Lord Chaitanya Mahaprabhu has instructed to Rupa Goswami at Daswamedha Ghat in Prayag during their conversation. The most important thing was clearly mentioned, that the seriousness of offending a Vaishnava.
Vaishnava Prad. Therefore, even in the 10 offenses that we are avoiding in chanting of the holy name, the first and foremost offense is to blaspheme or criticize a Vaishnava devotees who have dedicated their entire life propagating the holy name of the Lord. And Chaitanya Mahaprabhu compared Vaishnava Aprad as mad elephant, Hathi Mata. Mad elephant. If a mad elephant enters a garden or place, he will destroy everything. A beautiful garden will be destroyed in no minute. Similarly, Vaishnava Prad, Vaishnava offenses or Brahman offenses, what will it do? It will seriously block our, it's mentioned, Sripad mentions, it seriously spoils all your spiritual assets. Whatever you are attaining or whatever you have will be spoiled. Imagine you are cooking khichdi and the khichdi gets, you have added so much nice things in your khichdi, but you didn't realize that there was not enough water in your khichdi and the khichdi gets burnt. It gets even little bit burnt at the bottom of the pot. The whole khichdi gets spoiled, isn't it? Even though the whole khichdi is not burnt, a little grain is burnt at the bottom. Or if you're making dal, if the dal gets stuck at the bottom of the pot and it gets burnt, the whole dal will smell burnt. It will taste burnt, even though the whole dal is not burnt. So imagine what it means by spoil. The word spoil means it destroys all your good things. So we have to be very, very careful. As the song goes, Hari sthane aparade tare hari naam, tere sthane aparade nahi parikran. If you offend the holy name, if you offend the holy dham, if you offend Lord, you can chant mantra and ask forgiveness and you can be forgiven. But if you offend a devotee or offend a Brahman or a Vaishnava, there is no way Lord will forgive you. You cannot ask Lord, please forgive me. You know the story of Amrish and Durvasha Muni. It is very, very famous. You all know that story, isn't it? How Durvasha Muni offended Amrish Maharaj. You remember? Yes? Are you with us? Do you remember Durvasha Muni's story? And Amrish? No? So you tell. Asur. You remember? And then after that, Konchi Hois. What happened after that? You remember now? So what happened? How was Durvasha Muni? He was chased by the disc of Lord. Lord wanted to cut his head off. Similarly, when Jagai Madai offended Lord Nityanand, Lord Chaitanya Mahaprabhu immediately came, wanted to cut their head off. But then Nityanand, you can see how merciful he is. How merciful. Srila Prabhupada quotes that you cannot understand how merciful Lord Nityanand is. He said, please forgive them. You have not come here to destroy or kill these demons, but you have come to
destroy the sinful action of these miscreants. So you can understand how bad it is. तो आज के विषय यहाँ बात हो रहा है। राजा रघुगन बोलते हैं कि मुझे खतरनाक, बहुत भयंकर चीज जैसे इंद्र का वज्रम, कुबेर का शस्त्र, शिव जी का त्रिशूल, यमराज का दंड, अग्नि, गरम तप वाले सूरज की किरणें, हवा जोरों से जो चलता है, इन सब से मुझे कोई भय नहीं है। मुझे केवल एक ही भय है, वो है वैष्णव अपराध, भक्त ब्राह्मण का अपराध। तो राजा अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की कथा में ये वर्णन आता है कि यहाँ जैसे बताते ना, हरि स्थान अपराधे तारे हरि नाम, तेरे स्थान अपराधे नहीं परिकता। वैष्णव के प्रति अपराध करोगे तो भगवान भी नहीं क्षमा करेंगे। कई रूप से हम अपराध कर देते हैं, सेवा अपराध, धाम अपराध, नाम अपराध, परंतु भक्त के प्रति अपराध, वैष्णव के अपराध, ब्राह्मण के अपराध करोगे तो भगवान भी नहीं क्षमा करेंगे। सुदर्शन चक्र जब छोड़े तो दुर्वासा मुनि कहाँ कहाँ नहीं गए अपने आप को बचाने के लिए। ब्रह्मा के पास गए, शिव जी के पास गए, स्वयं भगवान के पास भी चल दी, नारायण के पास गए, बोले नहीं हम नहीं सकता, इस सुदर्शन चक्र हम नहीं सकता रोके। जिसके प्रति आप अपराध किया वो क्षमा करे तबे रुकी। तो कौन सके रोके सुदर्शन चक्र? भक्त सके रोकते। भक्त कितना शक्ति है। तो हमें इस अपराध से बहुत सावधान रहना चाहिए। समझाए यहाँ शिवपाल जी, वास्तव में ये वैष्णव अपराध क्या करेगा, आपका जो भी भक्ति का जो आमदनी आप कमाए हैं सब पानी में फेराए जी, खत्म हो जी, स्पॉइल हो जी। जैसे हम उदाहरण दे रहे थे, दाल बनाओ, अगर थोड़ा सा भी दाल नीचे अगर पकड़ ले, पूरा दाल में जरा जरा स्वाद आए, पूरा दाल स्पॉइल हो जाए। या खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी नीचे जल जाए, पानी इनफ नहीं डाले, या बहुत जोर स्टोव के आगी है, आगी बहुत जोर, तो सब स्पॉइल हो जाए। स्पॉइल मतलब बेकार हो गया। तो ये जो वैष्णव अपराध का तुलना दिया जाता है, चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के जब शिक्षा दे रहे थे प्रयाग में, तो बोलते थे कि सबसे बड़ा चीज से बचना है वो है वैष्णव अपराध, जो हाथी मथा कहते हैं, पागल हाथी। अभी पागल व्यक्ति आए तो सब जान जाए पागल है तो उससे दूर रहे, उससे नहीं कुछ करे, बिकॉज वो पागल कुछ भी सके करे, हाँ कि नहीं? उससे नहीं कोई अपन फायदा उठाई, नहीं तो फिर तुम्हारा पीछे ही लग जी। हाँ, जैसे टाउन में ढेर पागल लोग चले, थोड़ा उनसे नाइस एंड फ्रेंडली करे तो आए के दिन भर तुम्हारा वहाँ बैठा रही, कुछ ना कुछ करी। तो पागल हाथी का सवाल है, जबकि बताएं यहाँ, तो पागल हाथी आए तो सब के पिसल के दबाए के मारती, पूरा गार्डन एकदम चितर बितर करती। तो हमें हाथी मथा नहीं बनना, क्योंकि यही सर्वप्रथम 10 अपराधों में सबसे पहला अपराध है। और यहाँ एक और बहुत ही सुंदर लक्षण हम देखते हैं राजा रघुगन के, कि वो अपना जो भूल है, जो अपना वास्तविक उनमें खोट है, वो एकदम जाहिर करते हैं, बोलते हैं। ही frankly admits his fault. That is a very nice quality of a devotee.
Devotee doesn't fault find in others. He always finds faults in own self. जो भक्त होते हैं उच्च कोटि के, वो दूसरे में खोट नहीं देखते, वो स्वयं में खोट पाते हैं। तो यहाँ राजा रघुगण बोलते हैं कि मैंने एक बड़ा ही भूल किया, आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। बोले मैंने आपके प्रति अपराध किया। और वो अपने रथ में से उतरकर जाकर जट भरत से क्षमा याचना मांगते हैं। तो श्रील प्रभुपाद देखो कितना अच्छा प्रोग्राम रखी से। हम लोग कभी कभी जान अनजान में अपराध करते हैं। तो सुबह जब मंगल आरती हो जाता है, जब हम शिशास्त्र का प्रार्थना बोल लेते हैं, 10 अपराधों को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ताकि इनसे हम बचे रहें, ताकि हम ये अपराध नहीं करें। तो फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? हाँ, जो भी अपने आप को भगवान के भक्त मानते हैं या भक्त बनना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं? इन 10 अपराधों से बचते हैं। और अगर भूल चूक में अपराध हो जाए तो सबके प्रति वंशकल्पा करते हैं, दंडवत करते हैं। वंशकल्पा तुर्भेचा कृपा सिंधु भेवचा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हृदय से, दिल से क्षमा मांगते, फिर नहीं हाथी के रकम बनो। क्षमा मांग लो, क्षमा हो गया, फिर नहीं जाकर हाथी के रकम जाकर फिर वही अपराध करो। हाँ, तो ये क्या होता है? 7वां अपराध। भगवान के नाम के बल पे फिर से अपराध करो। वैष्णव भक्त बहुत दयालु है, क्षमा कर देते हैं, भक्त होते ही क्षमा करने के बाद फिर नहीं, हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। तो आज का विषय था कि हमें अपराध से बचना है, ये डर रहना चाहिए। भक्त अभय होते हैं, परंतु एक ही चीज से डरते हैं, अपराध। किसी प्रकार से अपराध ना हो जाए। और सबसे घोर अपराध है वैष्णव अपराध। जो वैष्णव अपराध से बचे रहे तो उनके सब स्पिरिचुअल एसेट्स माने जो कुछ है तुम्हारे पास, सब सही सलामत रहे, परंतु अपराध करने से सब नष्ट हो जाए। तो ना हमें किसी प्रकार से, ना मन में, ना शरीर से, ना किसी तरह से अपराध करना चाहिए। यहाँ तो जट भरत के प्रति राजा रघुगण ने कठोर शब्दों में अपराध किया। कठोर शब्द कहे, पर तुरंत अपने अपराध को क्षमा मांग रहे हैं, तो इनसे क्षमा हो जाता है। यही बड़ी खूबियाँ है कि हम जान अनजान में कैसे, आपको याद है ना, रूप गोस्वामी जपमाला कर रहे थे तो भगवान के वो दृश्य देख रहे थे कि श्रीमती राधा रानी को श्री कृष्ण भगवान झुलवा में झुला रहे हैं, और इतना जोरों से किए कि राधा रानी चिल्ला रहे हैं और कृष्णा हंस रहा है, और ये रूप गोस्वामी भी हंस रहे थे उस समय। और उसी समय एक संत महात्मा अगस्त मुनि वहाँ से जा रहे थे। अगस्त मुनि के जो गहराव जो हिप है वो भसक के चल रहे थे, तो थोड़ा जैसे कृपल थे। तो वो सोच बैठे कि देखो रूप गोस्वामी मुझे देख के हंस रहा है। ऐसे होता है ना, हमें देख के बोले, तो अनजान में वो अपमानित हो गए। बोले हमें देख के इतना बड़ा भक्त जब करे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, मुझे देख के हंस रहा। तुरंत रूप गोस्वामी के वो दृष्टि हेराई गए, दिखाई नहीं पा। फिर से ध्यान लगाए, नहीं दिखाए।
2-3 रोज तक ध्यान लगावे, भगवान के नाम दम धीरता से नाम लेके जपे, क्योंकि उतना उच्च कोटि के भक्त थे कि आप केवल सुने नहीं, उसके वो स्मरण होकर दृष्टि दिखाए। अभी तो हम लोग सुनता भी नहीं है, तब कहाँ हम लोग के फिर स्मरण हुई, कहाँ हम लोग के दृष्टि दिखाई। अभी कौन चीज दिखाए? जपा टाइम आँख क्या नहीं देखे, मन कहाँ कहाँ नहीं जाए। हम के सब के अपन चेंटिंग इस लेवल पे लाए के है कि हम जब चेंट करी हम के भगवान ऐसे दिखाए, दर्शन दिव्य लीला दिखाए। तो इस तरह से रूपक गोस्वामी के दृश्य दिखाए नहीं, अब ध्यान कितना करे नहीं दिखाए, तो अपने भाई सनातन गोस्वामी से जाकर कहते। दूसरा शिक्षा यहाँ मिलता है कि कभी कभी हमों के सेवा में बाधा हो या साधना में बाधा हुए तो हमें दूसरे भक्त से अपना हृदय के बात बताना चाहिए, नहीं कि वहाँ अभी भी इमेजिन करो या नकल करो कि हाँ सब कुछ ठीक है, हमारा सब बात साधना दम अच्छा है, हमें कोई से डिस्कस नहीं करेंगे। तो फिर रूपक गोस्वामी जब सनातन गोस्वामी के बताइस तो सनातन गोस्वामी क्या बताइस कि बोले आप सब के अपने घर पर खाने के बुलाओ, जो नहीं आएगा समझ लेना उन्हीं के प्रति आपने अपराध किया है। अब उन्हें फंस करे कि हम तो कोई अपराध नहीं करा, कभी नहीं करा, हम कैसे जाएं? नहीं, बात सुनिस। और सब आइस, केवल अगस्त्य मुनि नहीं आइस, फिर भी नहीं रूपक गोस्वामी फंस करे, हम कब उससे लड़ा, हम कब उससे कुंची करा। वो सीधा गए उसके घरे और दंडवत प्रणाम करके उससे क्षमा मांगे। जो सीरियस डिवोटी है, जो ना अपन लाइफ के सक्सेसफुल करे मांगे, वो हिचकिचाए नहीं टू बी हम्बल। फॉरगिवनेस आस्क करेंगे, मैं हिचकिचाए नहीं, क्षमा मांगने में देर नहीं करे, क्योंकि जाने जितना देर करेगा उतना उसके सब स्पिरिचुअल एसेट सब स्पॉइल होते जाए, उसके भक्ति सब नष्ट होते जाए। तो जैसे दंडवत करीस तब वो बताइस कि वो दिन के दिन हम देखा, आप हमें देख के हंस रहा था, हमें अच्छा नहीं लगा। तो रूपक गोस्वामी फिर बताइस कि काहे वो हंसता रहा, कौन ची भाईस। तब फिर अगस्त्य मुनि फिर उभी भी क्षमा मांगिस और दोनों फिर गले लगा लिस। और इस प्रकार से फिर रूपक गोस्वामी अपना नित्य भगवान श्री राधा कृष्ण के लीला में फिर दर्शन मिलने लगा उसके। तो कभी कभी अनजान में हम अपराध कर देते, तो हमें हमेशा बहुत ही सावधान रहना चाहिए, जान या अनजान में। हमें हर समय गुरु से प्रार्थना करना चाहिए, वैष्णव से प्रार्थना करना चाहिए, ये डर में रहना चाहिए। सेवा करते समय भी हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए कि कोई प्रकार के अपराध नहीं हो। ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं। ये वैष्णव अपराध के विषय में बात हो रहा आज। राजा रघुगण के 2 गुण हम देखते हैं कि उन्होंने अपने आप को ये बताया कि भक्त हमेशा अपराध से डरते हैं, खास करके वैष्णव अपराध, और वैष्णव अपराध से हमारा भक्ति नष्ट हो जाता है। जो कुछ है हमारे पास वो सब गुम हो जाएगा, जितना ही अच्छा गुण आए से सब नष्ट हो जाए धीरे धीरे। और दूसरा चीज है कि स्वयं अपने आप अपना जो बुराई है, अपना जो खराबी है, उसको स्वयं बोलो, कहो, ये भी एक बड़ा बड़प्पन है भक्त का। सब में खोट सब में भक्त देखते हैं कि सब में कोई खोट नहीं है, परंतु मेरे में सारा खोट है। ये देखना भी एक बहुत ही भारी बात है। ज़्यादा करके क्या हम करते हैं, सब में बहुत दोष है, सब बहुत खराब है, मैं ही अच्छा हूँ, ये अहंकार कराता है। परंतु जो निर्मल भाव से होते हैं, जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ सीक्रेट है कि वी शुड ऑलवेज सी अदर्स हैविंग वेरी नाइस गुड क्वालिटीज। ठीक है, कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहता है?
अगर कोई भक्त आपसे क्षमा मांगे और वो लगे उसके कि वो क्षमा नहीं करी से, तब कौन सी करेगा? You keep asking forgiveness, you keep saying I'm sorry, but a person तुम्हें forgive नहीं करे, then what can you do? हाँ? Then you should think, first try to see how can I please, because जब तक वो क्षमा तुम्हें नहीं करी तब तक तुम्हारा ब्लॉक है इधर. You should make all your effort. Then you have to see what will please that person. So do some nice service. Because you know कि तुम अपराध करा है और वो तुम्हें माफ नहीं करे. Then you should make all your effort to try to get the pardon. वो because जब तक नहीं तुम्हें forgive करी, कृष्णा ने forgive करी. Then despite doing all that, फिर भी तुम्हें नहीं forgive करे, then you leave it to Guru Krishna. बट वैसे तो हो ही नहीं, बिकॉज जब कोई रियल डिवोटी है वो तुरंत फॉरगिव कर दे, जैसे अमरीश की तरह. अमरीश महाराज के तो जानलेवा हमला करीस दुर्वासा मुनि, एक असुर के बताइए जिसके बद कर दो, मार दो, बार अपन तोड़ के करके फूकिस, वहाँ योगी था, बोले मार दो इसके जान से. पर जब दुर्वासा मुनि आए कि उसके पैर पे गिरी, तो तुरंत उठा के उसके गले लगाए लिस. सो फॉरगिविंग तो भक्त का लक्षण है. परंतु क्योंकि हम भक्त बन भी जाते हैं फिर भी गुण हमें सताता है, तो ये जो रजोगुण में भक्त है, तमोगुण के भक्त है, उनको बहुत दिक्कत होगा क्षमा करना, क्योंकि अपमानित रहते हैं. फिर भी हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि कैसे इसको हम खुश करें, क्योंकि अपराध से हमारा आगे बढ़ेला दम रुक जाए. चाहे कितना हम बड़े से बड़े कार्य करें, अगर हम अपराध करेंगे तो बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना. तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए. फिर दूसरा बात है कैसे कृष्णा फिर वो करे, बिकॉज कृष्णा हृदय में बैठा है. वो जाने तुम दिल से अपराध के क्षमा मांगा और वो फिर भी नहीं अपराध करे, तब कृष्णा उसके हृदय बदली. और तुम्हें मांगो, पूरा कोशिश करो, नहीं कि एक दफे सॉरी आई एम सॉरी और तुम्हें माफ नहीं करे फिर यू डोंट बोला ना. बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कोई एक पर्सन से भी हम अगर रूपा गोस्वामी अनजान में देखो करी, उसकी कोई गलती नहीं रहा, फिर भी उसके अपराध लगा. तो हम मांगो, बहुत दिल से सबसे क्षमा मांगो सब दिन. तो दिल नहीं लगे, अभी कृष्ण भावना नहीं आई, अभी मन कोई और चीज मांगे, बट बताते रहो, लगाए रहो. एक ना एक दिन दिल लग जी तब हो जी. अभी कभी कभी हम जनता ये चीज़ राइट नहीं है, बट फिर भी करते रहता है. फिर हम कभी कभी उसमें छोड़ देवा जानो कि जाए तब सीखी, एक्सपीरियंस करिए तब रियलाइज करिए बोले. बट हम लोग सब टाइम ट्राई करता कोई के बैड एक्सपीरियंस नहीं देवाए के, बट कभी कभी उन लोगों के मन में वही चले, दे वांट टू डू दैट, तो दे लर्न द हार्ड वे से. हाँ, बोलते रहो, हमारा फर्ज बनता है बताते रहना. ठीक है. ग्रंथराज भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय. निताई गौर प्रेम.